Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter local government, and under this chapter we were discussing in the previous class the growth of local government in India, and we have seen that in our country the local government were existing from the ancient time. Its form was different, like in the ancient India there were local village communities which were known as sabhas, and then these sabhas evolved into panchayats, and then we see that during the modern period when India become the colony of Britain, then also this evolution of local government was taking place, and it took an important turn in the year 1882 when Lord Ripon became the Viceroy of India. He initiated this elected local government bodies which were called local boards, and then we see that Indian National Congress was there, which was demanding that the local bodies, the local government body should be more powerful and they should be more effective. And then we have seen that Act of Indian Government Act of 1919 was passed, and according to this law again we see that the local government bodies were evolved in our country. In many provinces these local boards were established, and then again 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट ऑल्सो दिस प्रोसेस वाज कैरिड ऑन. And in this regard we have also discussed the viewpoint of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was a great supporter of decentralization of power. In his opinion, the power should never be concentrated at a place, because whenever there is concentration of power, it leads to misuse of power. And if we want in our country that democracy should be real, then in that situation what is important, that the power must be decentralized. And it was Gandhi who was of the opinion that independence must begin at the bottom. इंडिपेंडेंस कंट्री को मिली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन it should be started from the bottom level, that is from the level of the village. And it was his opinion that the apex should be sustained by the bottom. Bottom should not be sustained by the apex, but the apex should be sustained by the bottom. ये बहुत बड़ी बात है, ये समझने वाली चीज़ है, जिसको कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से अगर कोई भी गवर्नमेंट का डिसीजन होता है और उस डिसीजन में अगर हम लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, कॉमन पीपल को लोकल लेवल पे इन्वॉल्व करके, एंड देन द डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट, देन दैट डिसीजन विल बी सक्सेसफुल. People will follow the order of the government because they feel that they are involved in the decision making process. So that is the thing कि the apex should be sustained by the bottom. apex तभी sustain करेगा जबकि उसको bottom से support मिलेगा. एंड ये सपोर्ट जो बॉटम से मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि बॉटम का पार्टिसिपेशन है, बॉटम के अंदर ये बिलीव है कि ये गवर्नमेंट हमारी है, दैट इज डेमोक्रेसी. और जब ऊपर से हम अपने ऑर्डर्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है लोगों पर, तब उसके लिए सपोर्ट नहीं मिल पाता है, पार्टिसिपेशन नहीं मिल पाता है ना. तो ये था महात्मा गांधी का व्यू, जो कि सही में बहुत ही बिल्कुल सही व्यू थे उनके. एंड व्हाट वी फाइंड दैट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर प्लेस वाज नॉट गिवन to this local government, because we see that this local government was placed in the state list, है ना. स्टेट लिस्ट के वन ऑफ द सब्जेक्ट्स में लोकल गवर्नमेंट को रख दिया गया, जिसका ये कॉन्सिक्वेंस हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो अपने हिसाब से लोकल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग लॉज वगैरह जो भी बनाना है वो बनाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगी. और दूसरी चीज़ जो की गई वो ये कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इनको प्लेस दिया गया पंचायत को, कि पंचायत होनी चाहिए, लोकल बॉडीज इफेक्टिव होनी चाहिए. बट यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है दैट इज नॉट
समथिंग विच कैन बी लीगली इन्फोर्स्ड, इट हैज़ ओनली मॉरल अथॉरिटी, है ना। तो जब डीपीएसपी का एक हिस्सा बना दे रहे हैं और डीपीएसपी जो है उसके पीछे कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है बल्कि ओनली मॉरल अथॉरिटी इज देयर, तो ऑब्वियसली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लोकल गवर्नमेंट को जो प्लेस मिलना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्लेस नहीं दिया। एंड इट वॉज नॉट अ मिस्टेक बट इट वॉज डन डेलिबरेटली। इट्स नॉट कि बाय मिस्टेक ये छूट गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स से, बल्कि उन्होंने जानबूझ के ये किया। इसके पीछे कुछ रीज़न है, इसके पीछे ये रीज़न है कि कुछ ऐसे जैसे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जिस सिचुएशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रहा था, द सिचुएशन इन विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज made, that was a very disturbing situation because the country was facing partition, and with partition there was displacement of the population, and with displacement there was violence. तो ये जो सिचुएशन प्रिवेल कर रहा था, जो टर्मोइल हम फेस कर रहे थे अपनी कंट्री में, उससे क्या हुआ कि एक जो हमारे लीडर्स थे उनके भी मन में एक फियर आ गया कि जिस तरह से वायलेंस हो रहा है, जो कंडीशन प्रिवेल कर रही है इंडिया में, कहीं हमारी कंट्री टूट न जाए, बिखर न जाए। और इसलिए ये माना गया कि जो यूनिटरी जिसको हम कहेंगे कि जो सेंटर है उसको पावरफुल बनाया गया। सेंटर शुड बी पावरफुल। ये एक जो आइडिया था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो लीडर्स थे उनके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि हमको एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जिसमें हमारा सेंटर जो है वो पावरफुल हो। क्योंकि जिस तरह से जो कह सकते हैं जो डिवाइसिव फोर्सेस थी वो बहुत ही एक्टिव हो गई थी इस समय में, और एक डर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के मन में कि अभी तो 2 टुकड़े हुए हैं, कहीं भारत के बहुत सारे टुकड़े ना हो जाएं। क्योंकि एक दूसरी तरफ हम लोगों ने आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि किस तरह से जो प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके इंटीग्रेशन का भी प्रॉब्लम आ रहा था, है ना। तो कंट्री जो है वो बहुत ही पुअर कंडीशन से गुजर रही थी, जिसमें कि कंट्री की इंटीग्रिटी और यूनिटी पर एक बहुत बड़ा डेंजर आ गया था। तो ऐसे में ये नेहरू का भी व्यू था कि उनको ये लगता था कि लोकलिज्म को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए। अगर हम लोकल लेवल की गवर्नमेंट को पावरफुल बनाते हैं तो उससे क्या होगा कि लोकलिज्म प्रमोट होगी और दैट विल एंडेंजर आवर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो इस कारण से ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग यूनिटरी इंक्लिनेशन होना चाहिए, एंड दैट इज द रीजन हमने फेडरलिज्म पहले पढ़ा है, दो वी आर नॉट रिवाइजिंग द चैप्टर बट वी हैव डन फेडरलिज्म इन ग्रेट डिटेल। और उसमें हमने देखा है कि हमारा जो फेडरलिज्म है उसमें जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो इस तरह से किया गया है कि सेंटर को मजबूत बनाया गया है। सेंट्रल को मजबूत बनाते हुए फेडरलिज्म को इस्टेब्लिश किया गया है, क्योंकि वो जो सर्कमस्टांसेस थी वो यही कंपेल कर रही थी हमारे लीडर्स को कि सेंटर को मजबूत बनाया जाए, ताकि सेंटर ज़्यादा पावरफुल होगी तभी तो वो पूरी कंट्री को यूनाइट करके रख सकेगी। और अगर हम लोकल लेवल पे गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, लोकल लेवल की गवर्नमेंट को सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से पावर अगर देते हैं तो हो सकता है कि लोकलिज्म बहुत ज़्यादा प्रमोट हो जाए, जिससे कि हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा पहुंच सकता है। तो इसलिए हमारा जो पंडित नेहरू वॉज ऑफ दिस ओपिनियन कि लोकलिज्म को हमें प्रमोट नहीं करना है, हमें अपनी कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फ्रंट ऑफ अस। तो पहले हमें यही करना है कि अपनी कंट्री की यूनिटी को और इंटीग्रिटी को एंश्योर करना है, ठीक है। अब उसके बाद एक और व्यू था, और वो व्यू था हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का, because we know B.R. Ambedkar played a very prominent role in the making of the constitution. He is called the father of the Indian constitution. He was the chairman of the drafting committee of the constitution. तो obviously उनके जो views होंगे उसका जो impact है वो constitution पे हमें नजर आएगा। तो अम्बेडकर जो थे उनका ये सोचना था
कि जो रूरल सोसाइटी होती है ना, रूरल सोसाइटी इज फुल ऑफ फैक्शनलिज्म एंड they have the impact of caste only. People think on the terms of caste only. People are not in rural areas, people do not take decisions in a reasonable manner, but the caste factor plays a very important role in taking any decision. So it was his opinion, it was the opinion of Dr. Ambedkar that by giving this by making arrangement for local government at the village level actually will make no sense because of factionalism and caste ridden politics. So this was the opinion of Ambedkar, though we cannot support this view of Ambedkar because if we see caste cannot be eliminated from our politics. आज तक, even after 70 years of independence, caste is a very important factor in politics. हम ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं, कास्ट के बिना हम पॉलिटिक्स सोच ही नहीं सकते हैं. तो ये कहना कि जो रूरल सोसाइटी है दैट इज कास्ट रिडन, इट्स नॉट ट्रू. कास्ट रिडन तो हमारी अर्बन सोसाइटी भी है. आज जबकि 70 इयर्स बीत गए हैं फिर भी कास्ट के ही बेसिस पे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, कास्ट के ही बेसिस पे वोटिंग होती है मोस्टली, नॉट ऑल द वोटिंग्स हम नहीं कह सकते, बट कास्ट प्लेज अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री. तो ये इस बेसिस पे अगर हम लोकल गवर्नमेंट को नहीं जगह दे रहे हैं तो इसको हम रीजनेबल नहीं कह सकते. खैर वॉट एवर इट इज, वी डोंट नीड टू गो इन दोज डिटेल्स. वी जस्ट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट वॉट वॉज द रीजन फॉर नॉट गिविंग एडिक्वेट इम्पॉर्टेंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन itself. That is the reason, because Nehru as well as Ambedkar both were having this kind of view which was against giving the constitutional status to local government bodies. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का मतलब क्या होता है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज़ को मेंशन कर देते हैं तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाती है, उसका स्टेटस इंक्रीज कर जाता है. और जब किसी को हम लॉ बना करके जब किसी चीज़ को हम इस्टेब्लिश करते हैं तो उसका स्टेटस कंपैरेटिवली कम होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का मतलब कि हमने लोकल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, बट वी हैव नॉट गिवन दैट इम्पॉर्टेंस टू द local government. That is why our constitution there is no provision for local government in our original constitution, though there were members in the constituent assembly who wanted that village panchayat should be there, they must be given constitutional status, है ना. इस तरह के बहुत सारे लोग थे, लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन था वो यही सोच कर लिया गया कि फैक्शनलिज्म बहुत ज़्यादा ग्रुपिज्म हो जाती है गांव में और हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी जो है वो हमारे लिए एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है. एंड दैट इज़ वाई दिस डिसीजन वॉज टेकन नॉट टू गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू दिस लोकल बॉडी. एंड देन वी फाइंड व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स. आफ्टरवर्ड्स यही होता है कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश, ऐसा नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस नहीं दिया गया लोकल बॉडी को तो लोकल बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी. नो, दे वर एग्जिस्टिंग right from the independence. So what we find that in the year 1952 community development program was started by the government. This is community development program. 1952, ठीक है. ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था और इसका मतलब यही हो रहा है कि पीपल्स के पार्टिसिपेशन के साथ लोकल डेवलपमेंट करना, कम्युनिटी का डेवलपमेंट है. द होल कम्युनिटी शुड बी डेवलप्ड विद द एफर्ट ऑफ द कम्युनिटी. द पार्टिसिपेशन इज फ्रॉम द लोकल पीपल. They are participating in the different type of activities which leads to local development.
ठीक है। लोकल डेवलपमेंट के लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी उनमें लोगों का पार्टिसिपेशन करवाना, यही है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1952 में, जिसको स्टार्ट किया गया था। इसके बाद एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है, वो है हमारा, ये 1952 में हुआ, एंड देन इन 1957 गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड वन बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, इसको इसलिए अपॉइंट किया गया ताकि वो देखे कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने वो किस तरह से काम कर रही है, और विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनको अपनी रिपोर्ट देनी थी। तो इन्होंने जो रिपोर्ट दिया वो 3 टियर सिस्टम का ही रिपोर्ट दिया, जो जिसको हम पंचायती राज सिस्टम कहते हैं, जिसको उसी ऑलमोस्ट उसी तरह का जो है वो अब हमने अडॉप्ट कर लिया है। बट उस समय बलवंत राय मेहता कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जिसमें कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की बात की गई थी, वो रिपोर्ट तो आई बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और उसी समय हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी स्टेट से, लाइक गुजरात है, महाराष्ट्र है, जिन्होंने इलेक्टेड लोकल बॉडीज को अडॉप्ट कर लिया। 1960 से ही उनके यहाँ लोकल बॉडीज के लिए इलेक्शंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर इन 2 स्टेट्स को हम देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात में लोकल बॉडीज वर्किंग इन एन इफेक्टिव मैनर, बट अगर अदर स्टेट्स में देखते हैं तो वहाँ पर कंडीशन जो थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। न तो लोकल गवर्नमेंट को किसी भी तरह के पावर मिले हुए थे, न वो कोई काम कर सकती थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की वो फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बहुत ही बुरी थी। उनको पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होना पड़ता था फॉर देयर फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्योंकि कोई भी पावर है, कोई भी काम अगर हमें मिलता है और उस काम को करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर उस काम का कोई, उस पावर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यही कंडीशन जो थी वहाँ पर प्रिवेल कर रही थी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ। और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि लोकल बॉडीज़ को डिसॉल्व कर दिया जाता था बिना किसी प्रॉपर रीज़न के। कई सारे स्टेट्स में उनका जो इलेक्शन होता था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। कई बार उनके इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया जाता था। कई बारी मतलब इलेक्शन में कोई रेगुलरिटी, जिसको हम कहें कि बिल्कुल रेगुलर इलेक्शंस हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कई बार ऐसा भी होता था कि जो वहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे, उनको लोकल गवर्नमेंट का जो भी काम होता था वो उनको सौंप दिया जाता था, उनको दे दिया जाता था। तो ये कंडीशन जो है हम कह सकते हैं कि पूरी कंट्री में प्रिवेल कर रही थी, जहाँ पर कि लोकल बॉडीज एग्जिस्ट कर रही थी, बट लैक ऑफ रेगुलरिटी थी पूरी कंट्री में। ये हाईली इरेगुलर था, और इलेक्शंस तो बिल्कुल भी रेगुलर नहीं होते थे। इस तरह के कंडीशन, ना तो उनके पास कोई पावर था, ना कोई खास उन्हें फंक्शन दिया गया था, ना किसी तरह का फाइनेंशियल रिसोर्सेज था। तो वी कैन से कि दे वर एग्जिस्टिंग, बट देयर एग्जिस्टेंस वाज हाईली नॉमिनल, है ना। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे गवर्नमेंट को ये समझ में आने लगा कि देयर इज नीड टू चेंज ऑल दीज कंडीशंस। ये जो कुछ भी है प्रिवेल कर रहा है कंडीशन, इसको चेंज करने की ज़रूरत महसूस होने लगी। सो फॉर दिस पर्पस व्हाट वी फाइंड दैट इन द ईयर 1989 a committee was set up by the central government, and the name of the committee is P.K. Thangan Committee. The year is 1989 and the committee is P.K. Thangan Committee. कमिटी का जब भी नाम होता है ना, whenever a committee is named, it is named after the chairman of the committee. तो ये जो कमिटी बनी, इस कमिटी के चेयरमैन कौन है? पीके थंगन, और पीके थंगन के ही नाम पे इस कमिटी का नाम पड़ गया पीके थंगन कमिटी। तो गवर्नमेंट जो थी वो इस बात को रियलाइज कर रही थी कि देयर इज नीड टू review the situation, review the functioning of the
local government institution. Whatever condition is prevailing in the country, that needs to be reviewed and that needs to be changed, and for that purpose this committee was established by the central government. और ये जो कमिटी थी, इसका जो रिकमेंडेशन था, द मेन रिकमेंडेशन वाज टू गिव लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल recognition, because we have seen that some circumstances was such that our constitution makers deliberately did not give adequate place to this local bodies in the constitution, but now it was felt, it was the recommendation of the P.K. Tandon committee that the local bodies must be given constitutional recognition. It means that they must be given a place in the constitution itself. There must be some provisions in the constitution regarding the local bodies. They should get the power from the constitution itself. यहाँ पर it is very important to understand what is the importance of constitutional recognition. Suppose local government bodies are created by the law of the legislature, ठीक है, और द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर से या लेजिस्लेचर के लॉ बना करके लोकल बॉडीज जो है वो स्टैब्लिश हो जाते हैं. तो वैसे कंडीशन में जो लोकल बॉडीज होंगी वो उनकी पावर को पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव जब भी चाहे, इट कैन कर्टेल देयर पावर, इट कैन कंप्लीटली एलिमिनेट देयर पावर. क्योंकि किसने बनाया है उसको? द बॉडीज आर क्रिएटेड by the parliament or the executive. So because the body is created by the parliament or the executive, the parliament or the executive has the power to curtail its power. The parliament or the executive has the power to completely eliminate it. है ना? यही होता है ना, जिसने बनाया है वो उसको खत्म भी कर सकता है. तो अगर ये पार्लियामेंट इसको बना रही है अपने लॉ के थ्रू या गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू ये आ रहा है, तो इसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही हो जाएगी कि उसके एग्जिस्टेंस के लिए इट विल डिपेंड ऑन द डिजायर ऑफ द गवर्नमेंट, है ना. और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन उसको बनाता है, जब व्हेन देयर इज प्रोविजन regarding the local bodies in the constitution itself, it means that the local bodies are there because the constitution allows it. And if some change is to be brought in the power or composition or any kind of rules regarding the local bodies, that change cannot be brought by the parliament or the executive. But for that change, what will be required? There will be need to amend the constitution. And amendment is somehow important. इसका ये मतलब हो रहा है कि अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गया उसमें जब हमारे प्रोविजन को डाल दिया गया लोकल बॉडी के, तो अब लोकल बॉडी के रिगार्डिंग कोई भी चेंज आएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को आपको चेंज करना होगा. वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकती है. तो ये हमारे स्टेटस को, लोकल बॉडीज के स्टेटस को ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बना देता है, उसके स्टेटस को एनहांस कर देता है. और ये हो जाता है कि जो लोकल बॉडीज को जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है उस पावर में कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकती है. देयर शुड नॉट बी any kind of interference by the central or the state government, because the local bodies are getting the power not from the central or the state government but from the constitution itself. तो ये उनके इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है ना. वो उसमें इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है. इस तरह से उसके इम्पोर्टेंस को ये बढ़ जाती है. और ये नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में.
That is why we are seeing that such type of situation was prevailing कि elections regular नहीं हो रहे हैं, कहीं पर indirect election हो रहा है, कहीं पर उनको उनके काम जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स कर रहे हैं, कोई पावर उनका डिफाइंड नहीं, फंक्शन डिफाइंड नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ें जो है वो बदलने की ज़रूरत थी और यही पीके थंगन कमेटी ने रेकमेंड किया कि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जगह मिलनी चाहिए। दे मस्ट बी गिवन प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें उनके पेरियोडिक इलेक्शन की बात हो कि मतलब इलेक्शन कंपलसरी हो जाए, बिना इलेक्शन के, जैसे हमारे लोकसभा का इलेक्शन हर 5 ईयर्स पे होना ही होना है, लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस होने ही होने, कोई उसको नहीं रोक सकता है। तो उसी तरह से इनका भी प्रोविजन होना चाहिए, ठीक है। और उनको प्रॉपर फंक्शन भी देना होगा, ये नहीं कि बस उनके फंक्शन को कोई डिफाइंड नहीं है, उनके पावर्स कोई भी उसमें इंटरफेयर कर सकता है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ उनको फंड भी देना चाहिए। ये दीज वर द रिकमेंडेशन ऑफ द पीके थंगन कमेटी कि इलेक्शंस रेगुलर हो, पावर एंड फंक्शंस उनके डिफाइंड हो और साथ ही साथ उनको फंड भी दिया जाए ताकि वो अपने काम को कर सके। और इस पीके थंगन कमेटी के रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने मान लिया और मानते हुए गवर्नमेंट ने 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए थे इन द ईयर 1989। ओके, 1989 में गवर्नमेंट ने 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए और ये जो अमेंडमेंट्स लाए गए इनका यही एम था कि लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाना है। इंडिया के अंदर जो कंडीशन प्रिवेल कर रही है उसमें चेंज लाना है, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाना है और यूनिफॉर्मिटी, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि पूरी कंट्री में लोकल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, उनके स्ट्रक्चर का, उनके कंपोजिशन का, उनके फंक्शनिंग का। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए 2 अमेंडमेंट्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए, जिसको हम 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। जिसमें से अगर हम देखें तो 73rd अमेंडमेंट जो है दैट इज रिगार्डिंग द रूरल लोकल बॉडीज। 73rd जो है वो रूरल लोकल बॉडीज के लिए है। और इसके बाद दूसरा जो अमेंडमेंट है वो 74th अमेंडमेंट। 74th जो है वो किसके लिए है? वो है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, ठीक है। Okay, this is for urban लोकल बॉडीज, ठीक है। अब ये दोनों जो अमेंडमेंट है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसने हमारी कंट्री में लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंदर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चेंजेस लाए, जिसके कारण कि लोकल बॉडीज़ जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही है आज के समय में। और ये दोनों जो अमेंडमेंट्स हैं वो 1992 में इसको आ गए थे, ये अमेंड कर दिया गया था 92 में, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंट हुआ वो 1993 में हुआ। और इसमें हम ये देखते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो स्टेट सब्जेक्ट है। हमने देखा था ना जब पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकल बॉडीज़ की क्या कंडीशन है, तो उसमें हमने देखा था कि इसको स्टेट सब्जेक्ट में रखा गया था। तो इसमें क्या हुआ कि जो स्टेट्स हैं वो फ्री हैं, they are free to make their own laws on this subject, ठीक है। but once the constitution was amended, the state had to change their laws about local bodies। पहले तो यही था कि जो स्टेट्स हैं वो अपने हिसाब से इसमें कुछ भी बना सकते हैं क्योंकि वो तो स्टेट लॉ था, स्टेट सब्जेक्ट था। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाता है तो फिर ये कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है। और ये कंडीशन चेंज होके क्या हो जाती है कि अब क्या हुआ
कि उनको उसके जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है उसके अकॉर्डिंगली ही उनको लॉज बनाने। वो अपने हिसाब से हर स्टेट में अलग अलग लॉ नहीं बन सकता है। ये कंपल्सरी हो गया स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कि उनको अपने लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस लाने होंगे। और इसके लिए इसी के लिए उनको 1 साल का टाइम दिया गया। हमने देखा ना, ये दोनों जो अमेंडमेंट है 73rd और 74th, ये 92 में अमेंडमेंट हो गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इम्प्लीमेंटेशन के लिए 1 साल का टाइम दिया गया स्टेट गवर्नमेंट्स को, ताकि वो जो कुछ भी चेंजेस लाने हैं अपने स्टेट लॉज जो वो बना के रखे हुए हैं उसमें जो भी चेंजेस लाने हैं ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली हो जाए, तो उसके लिए उनको 1 साल का टाइम दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हम देखते हैं कि ये अमेंडमेंट्स जो आ जाते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं 93 से। और इसके बाद जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो टॉपिक है कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में कौन कौन सी नई चीज़ें उनसे हमारे इसमें आती हैं लोकल बॉडीज़ में। सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स in the next class.